knowledge, you must be knowing all the basics of Tally. That is, you know how to solve the question except the GST calculation. Okay. So I'm going to solve a question for you where I will be going to have the entries of sale and purchase with the GST option. So in case if you have your computer or laptop with you, you can open with me and you can simultaneously solve the question with me. And be ready with your notebook because I will be giving you all the entries. It will be better if you write all the entries manually first, and thereafter you can enter those entry into the Tally. कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं इसको टैली बिल्कुल नहीं आता इसमें? अगर ऐसी बात है तो यू कैन रिकॉर्ड दैट लेक्चर और बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? सेक्शन ए बीकॉम ऑनर्स में कोई है यहाँ पर? यस सर। साक्षी? जी यस सर। सर। अच्छा साक्षी, लैपटॉप है भी क्या? यस सर। And you know the Tally, then how to solve Yes, the basic sir. question. Yes sir. Okay, then in that case you will be solving the question. I will be assisting you. Okay. ओके सर। तो लैपटॉप से ज्वाइन करो उसको और स्क्रीन शेयर करो अपनी Tally. ठीक है सर, कर रहे। Okay. And all are requested to make us discipline over here. Be disciplined over here. Make no noise. I will give you the suitable time to ask your queries. So unless otherwise it is instructed, to please make yourself on a silent mode. अभी बच्चे आ ही आ रहे हैं, जस्ट 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं. Okay, who are new in this class, let me clear. My name is Rajesh Kumar Nega, and I will be going to help you in the Tally. अगर नहीं समझ में आएगा तो you can ask in the WhatsApp also thereafter, or whenever we meet in the college. Okay. There should be no hesitation from your point of view. You can ask anytime, any question, any doubt. Okay. ओके सर। Sakshi के साथ I need one more student over here who can read the question for her. Who will be helping? Will be solving question number 1 for which might be shared by you with your teachers. हाँ जी, कौन करेगा हेल्प? सेक्शन ए बीकॉम प्रोग्राम कौन है इसमें? सेक्शन ए बीकॉम प्रोग्राम। यस सर। मैं यस सर। बस आप मेरा क्वेश्चन खोल लो आप, बिकॉज साक्षी एक टाइम पे सारे काम नहीं कर पाएगी ना. कोई एक स्टूडेंट जो है ओपन दी क्वेश्चन. यस, गुड साक्षी. इलेवन 10 के बाद वी वोंट अलाउ एनी एंट्री. Okay. So Sakshi, first of all, we need to open a company. See, first of all, you can just write down the steps कि हमें क्या करना होगा. सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि we will be going to open a company. Now, the name of company may be given in the question to you, or sometime it is required to fill the imaginary information over there. So अभी हम लोग अपनी तरफ से कंपनी का नाम फिल कर देंगे और कंपनी को फॉर्म करने के बाद सेकंड स्टेप रहता है आपको अपना. अभी वेट साक्षी, वेट.
ओके सर। कंपनी को, हाँ अभी रुको एक मिनट, कंपनी को ओपन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको राइट साइड में जो ग्रीन टैब होंगे वहां जाके यू नीड टू सेट द पीरियड एंड डेट. द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू ओपन अ कंपनी. द सेकंड स्टेप इज दैट you need to adjust the period and date settings. After these two steps, the third step will be going to enter all the accounts which are given to us in the opening balance sheet. So in the opening balance sheet, we have many accounts consisting of stock, profit loss account, and cash. And you might be aware that there are two accounts which are auto generated by Tally. And these two accounts are cash account and profit loss account. तो आप लोग टैली के अंदर कभी भी कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे और कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपने आप नहीं बनाएंगे, वो ऑटो जनरेट होगा. यू नीड टू एंटर दी ओपनिंग बैलेंस इन दी ऑटो जनरेटेड अकाउंट. एक बार फिर से मैं थोड़ा आसान भाषा में बोलता हूँ आपको कि आपको जो ओपनिंग बैलेंस शीट को एंटर करना है टैली में, उसके अंदर दो अकाउंट ऐसे होंगे, कैश अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट. वो आप लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि टैली उसे अपने आप बनाता है, पहले से ही बने होंगे उसके अंदर. आपको उसके अंदर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को एंटर करना है. दैट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन. सेकंड प्रिकॉशन इज दैट कि जो स्टॉक का अकाउंट होगा उसको जनरेट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में डिफरेंट टैब को सेलेक्ट करना है. एंड दैट टैली टैब विल बी अ इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन. अभी आपको साक्षी करके दिखाएगी. पहला स्टेप क्या हो गया, विल बी गोइंग टू जनरेट अ कंपनी. सेकंड स्टेप क्या हो गया, विल डू द सेटिंग ऑफ टाइम एंड पीरियड. और तीसरे स्टेप के अंदर भी एंटर द कंप्लीट बैलेंस शीट इन द टैली. वो बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद शी विल शो यू द इंटायर बैलेंस शीट सो दैट यू कैन क्रॉस चेक द इंटायर बैलेंस शीट विद योर गिवन क्वेश्चन. और वहीं पे हम एक पॉज लेंगे और पॉज लेके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वहां तक की वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा. ओके ओके. हु विल बी रीडिंग द क्वेश्चन? Yes, sir. I'm ready. अच्छा अब्दुल, गुड गुड. Yes, बताइए sir. अब्दुल, कंपनी का नाम क्या है? So लास्ट क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं दे रखा है. चलो साक्षी गोयल, आपका ही नाम हो गया इसमें, लिखिए साक्षी गोयल. एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दो. Enter any pin code, whatever you have. Good. Mobile phone, email ID. So you need to enter the basic information whatever has been provided to you in the question. Wait. See, your financial year must be every time starting from 1st April 2022. तो जो हमारे कॉलेज में सिस्टम है उसको लेके तो आपका एक्सपीरियंस आपको मालूम ही होगा कैसा है. तो यू नीड टू चेक. यहाँ तो ऑटो मोड पे आ गया 1st April 2022, लेकिन आपको अपने कॉलेज के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको लेके बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कोई इन्फॉर्मेशन अज्यूम नहीं करने की. जिस तरह आप घर पे काम कर रहे हैं वैसा वो आप सिस्टम काम कर लेगा, ठीक है ना. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस अकाउंटिंग पीरियड मस्ट बी 1/4/2022 और एनी पीरियड विच इज गिवन टू इन द क्वेश्चन. हो सकता है क्वेश्चन किसी पुराने फाइनेंशियल ईयर का आ जाए, तो इन दैट केस यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट. ओके, चलिए साक्षी आगे. जस्ट वेट. चलिए हो गया. साक्षी गोयल नाम की देखो यहाँ पे कंपनी खुल गई है और गेटवे ऑफ टैली के दो पार्ट हैं. लेफ्ट पार्ट की जो आप पैनल देख रहे हैं वहाँ पे जो कंपनी पे हम वर्क कर रहे होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे हम वर्क कर रहे होंगे, दैट इज हाईलाइटेड इन द बोल्ड. एक तो बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं अभी तक ज्वाइन करे यार. ओके, सो वी हैव द कंपनी सेलेक्टेड कॉल्ड साक्षी गोयल. तो साक्षी गोयल, अब आप जाएंगे पीरियड में, राइट साइड में फोर्थ ऑप्शन इज गिवन, पीरियड. सेट द पीरियड ओवर देयर. एंटर कर दो. सेम पीरियड है 1/4/22 टू 31st March 23. एंटर. यस. नाउ डेट 1st April 2022.
Enter. Very nice. Okay. So we have opened a company in the name of Sakshi Goyal. We have corrected the date and the period. आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे आपको पहले जीएसटी की सेटिंग करनी सिखा रहा हूँ, उसके बाद साक्षी गोयल आगे प्रोसीड करेगी। साक्षी आप क्या करेंगे, जाइए जरा यहाँ पे, यस, फीचर्स में राइट साइड में सबसे नीचे आपको एक टैब नजर आएगा फीचर्स का। जो लोग पहली बार जीएसटी कर रहे हैं ध्यान से फॉलो करना उसको, ठीक है ना। You need to click features, which is given as second last option on the right side green tabs. और उस features के अंदर you need to go to the third option, statutory and taxation. थोड़ा स्लो चलना साक्षी, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट नए हैं यहाँ पर, ठीक है। So we have a GST option on the left hand side. You can see वहाँ पे already वहाँ पे no हो रखा है, तो you need to do yes over there. Y कर देंगे, yes अपने आप आ जाएगा वहाँ पर, enter हो जाओ, अगेन यस। जैसे ही आप दूसरी विंडो में यस करेंगे एकदम से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एंटर करो बेटा। ये नया इंफॉर्मेशन नया बॉक्स ओपन हो गया है। इस बॉक्स के अंदर यू नीड टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ पे आपका बिजनेस है, किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। आई बिलीव अब्दुल इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिल्ली का बिजनेसमैन है। Yes, sir. Okay, so you need to select that particular state very carefully, क्योंकि जीएसटी नंबर वेट, क्योंकि जीएसटी नंबर जो है वो स्टेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपका जीएसटी नंबर दिल्ली का नहीं हुआ या आपने अपने कुछ अलग स्टेट चूज कर लिया तो इस विंडो के अंदर वो सही से इंफॉर्मेशन को फीड नहीं कर पाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टेट इज दिल्ली। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में जाएंगे, इट इज रेगुलर, एंटर। एसएससी फॉर अदर, नो। नेक्स्ट, GST applicable from 1st April 22 is correct. आगे चलिए। Now this is very very important. यहाँ पे you need to fill the GST number. Abdul, please read the GST number. 07 5 times G 1314 R9 Z6। नीचे देखो एक नई टैब आ गई, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर। ये हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि डमी है, तो कोई भी की एंटर कर दो, कोई भी की प्रेस कर दो बेटा, हट जाएगा ये। यस। देन पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न, यहाँ पे हम क्वार्टरली कर लेते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, इट वोंट मेक एनी इफेक्ट फॉर अस। यस, एंटर। ना ई वे बिल बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी जाते हैं दिल्ली से बाहर या दिल्ली में देखते होंगे आप कि ट्रैफिक पुलिस वाले ना कुछ ट्रक्स को रोक के खड़े होते हैं या टेम्पोज को रोक के खड़े होते हैं, वो चेक करने के लिए कि वो कौन सा माल कहीं कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो आज की डेट के अंदर इंडिया में बाइंडिंग हो गया है कि कोई भी आर्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट मस्ट बी अकम्पनीड बाय जीएसटी बिल, जीएसटी पेड बिल, टू हैव अ कर्ब ओवर ब्लैक मार्केटिंग। तो हर एक कैरियर को, दैट इज हर एक लोडर को वो जीएसटी बिल लेके ही चलना पड़ता है रोड के ऊपर। अगर कोई आर्टिकल बिना जीएसटी बिल के जा रहा होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो दैट कैन बी लाइक फोरफिटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको ई वे बिल आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो हम फिलहाल यहाँ पे यस कर रहे हैं, लेकिन नो से भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो यू नीड टू डू यस ओवर देयर। चलिए आगे, यस कर दो। यस, डेट इज सेम, ओके, आगे चलो। या अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहा है कि आपको जो आपकी टैक्सेशन जो है वो किस बेसिस पर लगाना है, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू एंड टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो वी ऑलवेज चार्ज जीएसटी ऑन द इनवॉइस वैल्यू, जो बिल होगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो सेलेक्ट द इनवॉइस वैल्यू। नेक्स्ट इज लिमिट गिवन, वी कांट ऑल्टर दिस। आगे बढ़ो, बाय डिफॉल्ट ले रहा है, यस, आगे बढ़ो, यस। दिस इज इनेबल इन दी, एक मिनट को, मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है, जस्ट वेट। साक्षी क्या ऑप्शन लिखी हुई है यहाँ पर, इनेबल दी लायबिलिटी ऑन एडवांस, नो नो नो। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। इनेबल द लायबिलिटी इन रिवर्स चार्ज। बेटा रिवर्स चार्ज तब लगता है कि अगर मान लो आई एम रजिस्टर्ड इन द जीएसटी एंड इफ आई एम बाइंग द आर्टिकल फ्रॉम सम अनरजिस्टर्ड डीलर, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मैं अगर आर्टिकल परचेज कर रहा हूँ,
तो उस केस के अंदर मेरे को अपने आप जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। तो फिलहाल इन क्वेश्चंस के अंदर कोई रिवर्स चार्ज नहीं है जो जितने मैंने आपको दिए हैं, तो आई एम कीपिंग इट नो ऑप्शन। नेक्स्ट इज जीएसटी रेट्स। यस करिए इसको बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यस करेंगे एक विंडो खुल जाएगी आपकी। टैक्स लायबिलिटी इज टैक्सेबल, यस। रेट के 12%. अंदर अब 12% है। Yes, sir. हाँ 12% करिए आगे, एंटर एंटर। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन नो, प्रोवाइड नो, यस। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी जीएसटी सेटिंग कर दी है। एस्केप कर दो। Okay, so we already done my GST setting is okay now. Escape, come to the gateway of Tally. Okay, so in the gateway of Tally you find the first option, masters. So master will be helpful, is helpful for us to enter all the opening balance sheet in the Tally. So you can find two different tab over there. One is the accounts information, other is the inventory information. So all the stock entry will be passed through inventory information. Stock की entry कभी भी accounts information से नहीं करनी है आपको। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक की एंट्री आपने हमेशा कहाँ से करनी है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से करनी है। और स्टॉक के अलावा जितने भी बाकी अकाउंट्स होंगे दोज हैज टू बी फिल्ड विद द अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो साक्षी सबसे पहले क्या करेगी, इन्वेंट्री को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट्स को यहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो साक्षी यू कैन स्टार्ट। ग्रुप में लेजर में गो टू लेजर, गो टू द मल्टीपल लेजर, क्रिएट। यस अब्दुल स्टार्ट हो जाओ बेटा। Capital. जिन लोगों को अभी नहीं 20 मालूम lakh. जीएसटी के, सॉरी वेट वेट करना साक्षी एक मिनट। जिन लोगों को अभी टैली के बारे में नहीं मालूम तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नेम ऑफ लेजर है फर्स्ट ऑप्शन, और फिर दिया हुआ अंडर। तो वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैली के लिए क्या है कि अंडर, किसके अंडर वो अकाउंट आ रहा है। लेफ्ट में अभी साक्षी ने टाइप किया कैपिटल, लेफ्ट में आप कुछ भी लिख दो, लेकिन जिसके अंडर वो अकाउंट आ रहा है अगर आपने वो सही सिलेक्ट नहीं किया तो सब कुछ करप्ट हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं आएगा। तो अंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों को भी नहीं मालूम कि अंडर में कौन कौन सा अकाउंट ऑप्शन है, तो वो घर में अपने सारे अकाउंट्स की ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि राइट सिलेक्शन ऑफ अंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेफ्ट में आप कैपिटल की जगह राम शाम कुछ भी लिख देंगे और वो आगे सेलेक्ट करेंगे क्या, कैपिटल, तो वो अपने आप कैपिटल पे काम करेगा राम शाम के लिए। ओके, तो अंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टैली। चलो बेटा अब्दुल ने प्रोसीड। Capital 20 lakh. General reserve 10 lakh. स्लो स्लो स्लो, स्क्रीन भी देखना बेटा उसकी क्या कर रही है। एंटर करो बेटा। चलो General अब reserve. बोलो। अंडर रिजर्व्स या 10 lakh. Secured loan 2 lakh. Debentures 'It is secured or unsecured? Anything is mentioned over there? so unsecured. लिखा हुआ वहां पर? Yes, sir. अच्छा लिखा हुआ तभी अनसिक्योर्ड लेंगे, अदरवाइज डिबेंचर आर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड। Okay, sir. 2,50,000. Creditors उसमें creditors की For entry creditors, करें. you need to come to the after the balance sheet, one different separate box will be given to you where all the individual name of the creditors are given. आप कभी भी creditor का अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट बनाएंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ बताओ अब्दुल क्या है? Amit 85,000. Sumit 95,000.
नवीन, 70,000। ऊपर आ जाओ। बिल्स पेबल, 75,000। Provision for taxes, 33,000। Salary outstanding, 25,000। Rent outstanding, 37,000। हो गया। एसेट्स की एंट्री करो। लैंड एंड बिल्डिंग, 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, 18 लाख। फर्नीचर्स, 1,70,000। इन्वेस्टमेंट, 80,000। पंजाब नेशनल बैंक, 2,25,000। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1,75,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस, 5,000। बिल्स रिसीवेबल, 85,000। अब डेटर्स की एंट्री करो। सीमा, 30,000। पूजा, 45,000। राहुल, 50,000। प्रीति, 80,000। Yes, what next now after Priti?
Hello. Sakshi, am I audible? सर आप ऑडिबल हो। Okay. What is next after Preeti? Abdul? सर वो लेफ्ट हो गया है। अच्छा, कोई नहीं, कोई और पढ़ लेगा. Let me check. Preeti तो आ गई ना. Preeti is 80,000 entered? Yes. Hello. Okay, that's it. Sakshi, go ahead and accept the. Yes, accept. Okay, so we have entered all the account information. Now, except two accounts, cash and profit loss account, we have entered all the accounts. Now we are going to enter or correct the balance of profit loss account and cash account. For that, you need to go to the single ledger and do the alter. Alter, you can find the cash account which is not opened by you, but it is already there in the tally. Please enter. और सबसे नीचे देखिए, आप देख सकते हैं कि वहां लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस. So you move your cursor to that space where opening balance is written, and वहां पे आप डालेंगे कैश में 30,000. Yes, okay. Move. Now go to the profit and loss account. Yes, it has a balance of rupees 8 lakh opening balance. Escape, escape, escape. Yes. Now we are back to the gateway of Tally. We have entered all the accounts information except the stock. Now we are going to enter all the inventory information. For inventory information, you need to go to the inventory information. Yes, enter. So in inventory information, first of all, you have to maintain the measurement unit over here. So first of all, we go to the unit of measure. Yes, enter, create. And here you have to write down symbols के आगे number NOS dot. Enter the formal name number NUMBER. Enter, enter. Yes. Escape. Escape. Now go to the stock group. Multiple, create. So in the stock group, I think we have two things only, Philips and Kenster. Enter. The first stock group is Philips. Enter. Enter. Yes. सारे आइटम ऐड हो जाएंगे आपस में. Next is Kenster. KENSTR. Kenster. Yes. Yes. So we have created the stock group. Please accept that. Okay. Now go to the escape. Go to the stock item now. Multiple create. Yes. In stock item, the first item is lamp. Akash Yadav. Akash Yadav. जी सर। क्वेश्चन पढ़ो उसके लिए जल्दी आगे. सर क्वेश्चन नहीं मेरे पास भाई। तो फिर आप ऐसी हवा खाने आएंगे. नेटवर्क इशू हो रहा था सर, नेटवर्क इशू हाँ था. करो. बताओ स्टॉक आइटम लैम्प अंडर बताओ. ग्रुप ग्रुप्स फिलिप्स, क्वांटिटी 50, प्राइस 500. नेक्स्ट आइटम बल्ब, अंडर ग्रुप फिलिप्स, क्वांटिटी 500, रेट 120. बल्ब बेटा बाकी लोग अपने माइक अपने में बाकी लोग अपने को साइलेंट मोड पे रखें. किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए अब्दुल के अलावा.
Yes, move ahead, Abdul. Bulb under Philips, quantity 500, price 200. Next, tube light, under group Philips, quantity 400, price 200. Next, juicer, under group Kenster, quantity 80, price 1000. Next, mixer, under group Kenster, quantity 45, price 2000. Next, kettle, under group Kenster, quantity 100, price 600. बस. Accept this. Good. Escape, gateway of tally. So we have entered all the accounting information and inventory information. Now there is a need to cross check all the data first before moving further. Reason being कि अगर यहाँ पे हमने कोई mistake कर दी तो आगे भी हमारी सारी mistake continue हो जाएगी. So you need to come to the reports, and in the report come to the balance sheet. On the right side you have an option of detailed balance sheet. Just click that, and you can check all the accounts over here. Total of balance sheet is coming as it is, which is given in the question, 46,70,000, and there is no difference in balance sheet. It means whatever work we have done till this point, it is all correct. किसी की queries होगी तो they can raise your hand. Yes sir, मेरी भी उतनी आ रही है fixed asset में 35,50,000. अब तो नहीं आ रहा ना? Yes sir. हाँ, तो you need to be very very careful कि यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आगे भी सब चीजें करप्ट होती चली जाएंगी, ठीक है ना? तो आपने यहीं पे सबसे पहले एक पॉज लेके जितना काम आपने कर लिया उसको रीचेक करना है एग्जाम के अंदर भी, ओके? क्योंकि यहाँ तक की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के मार्क्स अलग हैं, वॉचर एंट्री के अलग हैं, सो हर एक स्टेप के अपने अपने मार्क्स हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट. ओके, सो वी हैव डन द बेसिक थिंग. इतना तो मेरे को उम्मीद है कि सब लोगों ने कर लिया होगा पहले भी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर, ओके? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जीएसटी थिंग. Sakshi, come to the escape. Yes, now we are back on the gateway of tally. अब देखो, before entering all the vouchers in the tally, आप लोगों ने किया होगा जब भी हम कोई सेल या परचेज कर रहे हैं तो वहीं पे ऑल्ट सी करके वहीं पे अकाउंट ओपन करते थे. लेकिन हमें यहाँ पर सेल और परचेज का अकाउंट पहले ओपन करना है along with all the respective GST अकाउंट. तो पहले जिन बच्चों को जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होगा क्या इसके अंदर. देखिए बेटा, जब भी हम गुड्स की बात करेंगे, गुड्स की सेल परचेज की बात करेंगे या गुड्स की रिटर्न की बात करेंगे या सेल रिटर्न की बात करेंगे, तो वहां पे हमेशा हमें जीएसटी की एंट्री साथ में डालनी है. अब जीएसटी की एंट्री डलेंगी कैसे? जब भी हम कोई आर्टिकल परचेज कर रहे होंगे, व्हेनेवर वी आर बाइंग, जब भी हम कोई आर्टिकल परचेज कर रहे होंगे तो वी नीड टू पे जीएसटी. जैसे आपने देखे होगा, मान लो आपने कोई आर्टिकल लिया अपने घर के लिए या आपने अमेजोन से कुछ मंगाया, तो जो भी आप बिल पे करते हैं वो जीएसटी के साथ आता है. तो बायर हैज टू पे जीएसटी. अब यहाँ पे जो ये बिजनेसमैन है, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है साक्षी, वो आर्टिकल को परचेज भी कर रही है और वो आर्टिकल को सेल भी कर रही है. जब आप आर्टिकल को परचेज करेंगे तो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, और जब आप आर्टिकल सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आपको मिल रहा है. कौन पे कर रहा है? बायर आपको पे कर रहा है, ओके? तो एज ए साक्षी जब आर्टिकल को परचेज करेगी तो जीएसटी वो पे करेगी, और साक्षी जब आर्टिकल को सेल करेगी तो उसको जीएसटी मिलेगा. सो यू आर डूइंग साइमल्टेनियसली बोथ द थिंग्स. यू आर पेइंग जीएसटी एंड यू आर रिसीविंग जीएसटी. अब हम बात करते हैं परचेज की. पहले
जब हम जीएसटी पे करेंगे तो उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि आर्टिकल हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं। जैसे कि साक्षी जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर दिल्ली का बिजनेसमैन, साक्षी इज द बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली। तो अगर दिल्ली के अंदर हम कोई आर्टिकल की सेल परचेज करते हैं, दिल्ली में किसी आर्टिकल की सेल परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 12%, उसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब 12% का इक्वल कितना हो गया 6%, 6%। तो अगर दिल्ली के अंदर हम आर्टिकल की सेल परचेज कर रहे हैं तो जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले पार्ट को बोलेंगे हम सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग स्टेट जीएसटी, मतलब जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं विद इन द सेम स्टेट, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। और जो सेंट्रल का जीएसटी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो स्टेट का जीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये जिस समय जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था उस समय डिसाइड हुआ था कि व्हेनेवर देयर इज एन आर्टिकल बॉट एंड सोल्ड इन द सेम स्टेट, तो जो जीएसटी का अमाउंट है वो सेंट्रल और स्टेट आपस में शेयर करें। तो जीएसटी अगर आप विद इन द स्टेट पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसके हमेशा दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट बोलेंगे सीजीएसटी और दूसरा पार्ट बोलेंगे एसजीएसटी। लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से बाहर किसी आर्टिकल को सेल परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जो जीएसटी पे करना होगा वो पूरा सेंट्रल के पास जाएगा, और उसका नाम होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अगेन आई एम ब्रीफिंग टू यू कि अगर आपने विद इन द स्टेट सेल परचेज किया तो आपने जो जीएसटी का अमाउंट पे करना है या रिसीव करना है उसके दो पार्ट हो जाएंगे। द फर्स्ट पार्ट गोज टू सेंट्रल, उसे बोलेंगे हम लोग सीजीएसटी। द सेकंड पार्ट विल गो टू द स्टेट, उसे बोलेंगे हम एसजीएसटी। लेकिन अगर हम अपनी स्टेट से बाहर किसी आर्टिकल की सेल परचेज कर रहे हैं तो पूरा जीएसटी सेंट्रल को मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी। नाउ जब भी हम जीएसटी पे करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है कि जो जीएसटी आप पे करेंगे उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो आपको हम पे बैक करेंगे, रिकवर करवाएंगे आपको। तो जब भी मैं परचेज करते हुए अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, बेटा अपना माइक ऑफ रखो बिल्कुल। जब भी मैं कोई आर्टिकल परचेज करूंगा तो उसको जो जीएसटी में पे करूंगा उसे बोलूंगा इनपुट जीएसटी। और जब भी मैं कोई आर्टिकल सेल करूंगा तो मेरे को जीएसटी मिलेगा, उसे बोलूंगा आउटपुट जीएसटी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम परचेज करेंगे तो दैट इज इनपुट जीएसटी, और जब भी हम सेल करेंगे दैट इज आउटपुट जीएसटी। तो अभी हमें क्या करना है, हम ये सारे के सारे जीएसटी के अकाउंट खोलेंगे। वी आर गोइंग टू ओपन ऑल द जीएसटी अकाउंट अलॉन्ग विद सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अगर मैं इनपुट जीएसटी की बात करूं तो इनपुट में 3 जीएसटी हो गए। वन इज इनपुट सीजीएसटी, दूसरा इनपुट एसजीएसटी और तीसरा इनपुट आईजीएसटी। और जब हम सेल की बात करेंगे तो वहां भी जीएसटी के 3 अकाउंट ओपन होंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। तो 3 इनपुट जीएसटी के अकाउंट ओपन होंगे और 3 अकाउंट ओपन होंगे आउटपुट जीएसटी के, अलॉन्ग विद द नॉर्मल अकाउंट जो हम पहले से ओपन करते रहे हैं, सेल परचेज, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो साक्षी सबसे पहले आप जीएसटी के अकाउंट ओपन करेंगे। उसके लिए यू नीड टू गो टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन वंस अगेन, वहां पे लेजर, और यहां पे ये ध्यान रखना है आपने कि मल्टीपल क्रिएट में नहीं जाना आपको, यहां सिंगल लेजर में जाएंगे आप, ठीक है ना। प्लीज एंटर। यहां पे आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी हम कब पे करेंगे, अगर विद इन दी स्टेट हम परचेज कर रहे हैं। यस, एंटर। एंटर। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखो जैसे ही आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगेंगे तो एकदम से कुछ और इन्फॉर्मेशन वहां से मांगना शुरू करेगा। आगे जाइए, एंटर। यहां पूछ रहा है कि कौन सा टैक्स लगाना है आपको, तो जीएसटी लगाना है हमें। जैसे जीएसटी पूछेगा तो कह रहा है कौन सा जीएसटी, देखो ऊपर नाम ही लिखा है मैंने, सेंट्रल जीएसटी, तो सेंट्रल टैक्स। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रेट, तो आपको मैंने बताया कि जो भी रेट एप्लीकेबल होगी वो हाफ हाफ हो जाएगी सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए। तो बेटा 6%, 6 लिख देना बस। उसके बाद बोल रहा है राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल, नो, नो, सेलेक्ट, यस। मेरा इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट क्रिएट हो गया। नाउ आई विल गो टू दी इनपुट एसजीएसटी।
Yes. Enter. GST. Good. Now ये स्टेट के पास जा रहा है तो स्टेट टैक्स and rate is again 6%. Very good, Sakshi. Good. Next is input IGST. ये कब पे करेंगे आप? ये आप तब पे करेंगे अगर आप आउटसाइड द स्टेट परचेज कर रहे हैं. यस, मूव अहेड. GST. गुड. इंटीग्रेटेड. गुड. 12. देखो यहाँ पे हमने हाफ नहीं किया, 12 कर दिया. गुड. एक्सेप्ट कर लो बेटा. Just wait. So we have opened 3 input GST account, and those 3 account will be used whenever we are buying the article. If I am going to buy within the state, so I will be using the CGST and SGST half. And if I am buying from outside my Delhi state, then I will be paying IGST. Now I am going to open, Sakshi will be going to open all the output GST account. Yes, go ahead beta. Output CGST. Good. 6%. Very nice. Output SGST. Good. 6. Good. IGST. Yes. 12%. Good. Now sales account. Under sales. Sales account will be under sales. Inventory factored, yes. Not applicable. Applicable, yes. Yes. A new window will open. यहाँ पे जब हम सेल्स के ऊपर आएंगे तो राइट में एक नई विंडो, लेफ्ट और राइट दोनों में एक नई विंडो आएगी. वहां पे आपने क्योंकि सेल कर रहे हो दैट सेल इज टैक्सेबल, तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल सेल की ऑप्शन आ रही होगी कहीं पे. सेल्स टैक्सेबल. आई लाइक 7th लास्ट आई गेस. यस. द रेट इज 12%. एंटर. गुड. आई एम सेलिंग. यस, गुड. चलिए आगे. Now sales return, again under sales. Yes, good. वही sale taxable. 12%. Goods. Fine, yes. Now purchase. Under purchase. Yes. Taxable purchase सबसे एंड में आ रहा है लास्ट में. Good. 12%. Yes. Purchase return. Taxable purchase. 12%. Good. Escape. Now we are coming back to Gateway of Tally. Now we'll start doing the voucher entry. Now we need to come to the transactions. Transaction में accounting vouchers. Yes, Abdul. What is the first transaction? Purchase from Amit. Amit is registered supplier from Delhi. Item lamps. Quantity 300 and rate 400. So यहाँ लिखा हुआ है कि आपने परचेज किया है अमित से. यहाँ पे ये चेक करना जरूरी है कि अमित कहाँ पे रहता है. इट इज विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. तो इट इज क्लियरली मेंशन ओवर हियर कि वो दिल्ली का सप्लायर है. दिल्ली के किसी पार्टी से हमने आर्टिकल परचेज किए हैं, लैंप परचेज किए हैं. क्वांटिटी इज 300 एंड द रेट ऑफ per unit is 400. Okay, so we are going to move to the purchase voucher.
परचेज वाउचर वाउचर खोलेंगे, वहां पे बेटा इनवाइस नंबर 1 डाल दो, एंटर एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पार्टी सर अकाउंट नेम। परचेज फ्रॉम अमित। हाँ हाँ, नहीं पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है ना। हाँ तो बेटा वहां पे हमने अमित 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 से लिया है, अमित। अमित। हाँ, अमित को सिलेक्ट करो, ये सेंटर कर दो, उसका आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे परचेज अकाउंट, यस। अच्छा एक मिनट, सब लोगों के पास नोटबुक है उनकी? जरा नोटबुक निकाल लो, बता रहा हूँ एंट्री कैसे लिखेंगे इसके अंदर। देखो नॉर्मल हम जब परचेज करते हैं आर्टिकल, हमारी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ जो हमने जीएसटी पे करना है, कौन सा वाला पे करना है, स्टेट का या सेंट्रल का? आईजीएसटी पे करेंगे या हाफ ऑफ पे करेंगे? सर हाफ ऑफ पे करेंगे। हाफ हाफ ऑफ पे करेंगे। सो द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू अमित। मतलब 2 अकाउंट और एक्स्ट्रा डेबिट हो रहे हैं परचेज में। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट डेबिट टू अमित। तो वो अकाउंट कैसे होंगे ऑटो मोड में भी चेक करते हैं। तो पहले आर्टिकल का डिटेल फिल करते हैं बेटा। देखो लैम्प लैम्प परचेज किया हमने, यस। क्वांटिटी के अंदर इट इज 300, रेट इज 400। हाँ, एंटर, सिंगल एंटर मारो। देखो जैसे ही आप सिंगल एंटर करेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में अमाउंट के टोटल के बाद एक लाइन आ रही है, और लाइन के बाद एक टोटल का अमाउंट फिर से लिखा हुआ, ठीक है ना। जब तक आप उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, अबव द लाइन है, जब तक आप परचेज वाउचर के अंदर है, ठीक है ना। जैसे ही एक और एंटर करूंगा तो परचेज वाउचर फिनिश हो जाएगा और वहां जीएसटी काम करना शुरू कर देगा। बेटा एक एंटर और करो, वो लाइन हट जाएगी वहां से। देखो लाइन वहां से हट गई है। अब मैंने क्या पे करना है, इनपुट सीजीएसटी, एंटर इनपुट। जैसे आई डालोगे तो ऑप्शन आ जाएगी इनपुट सीजीएसटी, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अपने आप देखो वहां रेट लिखी आ रही है, और अपने आप उसने अमाउंट भी निकाल ली, एंटर, इनपुट सी एसजीएसटी। देखो जैसे ही ये सिलेक्ट कर रही है, अपने आप वहां पे रेट आ रही है और अमाउंट भी आ रहा है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो हमारे कॉलेज में सिस्टम है, तो कई बार वहां पे अमाउंट अपने आप नहीं निकालता। अगर नहीं निकाल रहा हो कोई बात नहीं, अपने हाथ से वहां फिल कर देना, ठीक है ना। कैलकुलेटर के अंदर 6% कैलकुलेट करने के बाद यू कैन एंटर द अमाउंट ओवर देयर। अगर वहां नहीं आ रहा है, वैसे सब कुछ ठीक किया होगा तो आएगा। इन केस अगर एग्जामिनेशन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने हाथ से वहां पे एंटर कर देना, ठीक है ना। चलिए बेटा एंटर करो, ये नो कर दो, ई वे बिल नो कर दो, यस यस। तो फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीट विद जीएसटी। ओके, द सेकंड एंट्री अब्दुल। सेल्स टू राहुल एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. कहाँ पे He रहने is वाला है वो? registered supply from Mumbai. मुंबई का है सर। मुंबई। मुंबई मतलब जी आउटसाइड द स्टेट हो गया। आउटसाइड अब इंटीग्रेटेड क्योंकि लेवल। मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी होगा या आउटपुट जीएसटी होगा? सर आउटपुट आउटपुट होगा सर। आउटपुट वाला होगा, आउटपुट वाला आउटपुट होगा। और इंटीग्रेटेड। आउटपुट में भी आईजीएसटी वाला होगा, क्योंकि मैं आउटसाइड द स्टेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस तो विल मूव टू द सेल वाउचर। पहले वहां पर नंबर 2 डाल दो बेटा, इनवाइस, एंटर। पार्टी नेम इज राहुल। देखो राहुल है हमारे पास ऑलरेडी, यस है, एंटर। यहाँ पे हम आएंगे, हमने सेल किया है, सेल्स अकाउंट, यस, एंटर द इंफॉर्मेशन। 350 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल लिया हमने यहाँ पे? बल्ब सर। बल्ब, हाँ सॉरी बल्ब। जी क्वांटिटी इज 350। क्वांटिटी 350. हाँ, रेट बिफोर डिस्काउंट 300 है। तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट? 10% है तो 270। 270 सॉरी 270 डिस्काउंट के बाद 270. एंटर एंटर। देखो फिर से वहां पे एक लाइन आ गई, आप देख रहे हैं। तो अभी आप सेल वाउचर में है, डू वन मोर एंटर। अब यहाँ पे आउटपुट ओ लिखेंगे तो आउटपुट वाले का खुल जाएंगे सारे, आउटपुट आईजीएसटी। देखो जैसे इसने एंटर किया, देखो इसने देखो रेट तो पिक कर ली 12% की, देख रहे हो आप, लेकिन अमाउंट पिक नहीं किया इसने, अमाउंट इसने पिक नहीं किया। यहाँ पर साक्षी ऑल्ट ए करना, ऑल्ट ए,
देखो ऑल्ट ए जब करोगे ना, जैसे ही आप ऑल्ट ए करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जीएसटी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहा। चलो स्किप कर दो इसको। तो यहाँ पे यू नीड टू फिल दी डेटा योरसेल्फ, क्योंकि ऑटो मोड में यहाँ पे इसे टेक नहीं कर रहा, वो सारे करप्ट सॉफ्टवेयर, सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ना, इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप जरा इसका अमाउंट निकाल लो, वहाँ ऑल डे में अमाउंट दिखा रहा होगा, देखो आपको वही अमाउंट फिल कर दो। ऑल डे में देखो कितना अमाउंट आ रहा है जीएसटी का, अरे 11 कितना है, 340। आइए एंटर कर दो आप, एंटर, एंटर, नो, यस। अब्दुल नेक्स्ट। Paid 1 lakh to Amit. एक मिनट, वेट 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 वेट, क्या आ रहा है ये, एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्या साक्षी? एंटर करो। यस, ओके। अब्दुल बताओ नेक्स्ट। Paid 1 lakh to Amit in full settlement for the transaction at serial number 1. तो सीरियल नंबर 1 के अंदर ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेक करना होगा आपको। वो अमाउंट या तो आप डे बुक में जाके चेक कर सकते हैं, या कैलकुलेटर तो आपको अलाउड ही है, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि 300 आर्टिकल हमने परचेज किए थे 400 के, तो कितना अमाउंट हो गया, 1,20,000, और उसके ऊपर 12% जीएसटी था, तो 1,20,000 प्लस 12% कितना हो गया अब्दुल? Sir, 14,400 GST हो गया और 1,20,000. कितना हो Sir, गया total अमाउंट? amount 1,34,400. 134,400, और हमने कितना Yes, पे sir. करा है उसको, 1 लाख इन फुल 1 lakh. सेटलमेंट। Yes, sir. तो हाउ मच इज डिस्काउंट? 34,400. हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी, एनीवन नो? अब्दुल बता सकता है एंट्री क्या बनेगी? चलिए मैं बताता हूँ एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर। नाउ हियर यू आर पेइंग अमित अकाउंट डेबिट 134,400। वेट वेट साक्षी वेट, बाकी लोग एंट्री ले सकते हैं। अमित अकाउंट डेबिट 134,400। अब देखो पेमेंट किससे करनी है, ऊपर कुछ मेंशन है कौन से बैंक से करनी है पेमेंट, लिखा हुआ है देखो, जस्ट वेट। स्टेट बैंक से। Yes, sir. State Bank से ही है. अमित अकाउंट डेबिट 134,400 टू एसबीआई 1 लाख एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 34,400। 34,400। तो ये कंपोजिट एंट्री है, वी नीड टू ब्रेक इट। जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, अमित टू एसबीआई 1 लाख और अमित टू डिस्काउंट रिसीव 34,400। तो आपको मालूम है मैंने एंट्री क्यों ब्रेक करी है, क्योंकि कैश वाउचर से आप डिस्काउंट की एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इस कंपोजिट एंट्री को ब्रेक कर दिया। फर्स्ट एंट्री क्या बनी मेरी, अमित टू एसबीआई, दैट कैन बी एंटर थ्रू पेमेंट वाउचर, और जो डिस्काउंट की एंट्री होगी अमित टू डिस्काउंट रिसीव, उसको मैं जनरल से एंटर करूंगा। ये बातें आपको शायद पहले से मालूम होंगी। हाँ जी बेटा, पेमेंट करो जरा यहाँ पे एसबीआई से 1 लाख। यस, 1 लाख एंटर ऑन अकाउंट, एंटर, एक्सेप्ट कर लो। जर्नल पे जाओ, वहां एंट्री बनेगी अमित टू डिस्काउंट रिसीव, अमित सेलेक्ट कर लो 34,400, एंटर ऑन अकाउंट टू, एंटर। अब देखो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट नहीं ओपन हो रखा, तो विल ओपन इट इमीडिएटली ओवर हियर, ऑल्ट सी, डिस्काउंट रिसीव्ड, indirect income, under indirect income। यस, कहां पहुंचे, क्या पूछा है, जीएसटी पूछा है इसके अंदर, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जीएसटी पूछा है आपसे? नो। नॉट एप्लीकेबल, यस।
enter, enter. Abdul, next entry. Investment sold. Total amount 1,50,000. Sold total Investment sold? investment. एक मिनट रुको बेटा, 4th नंबर एंट्री पूछ रहे हैं ना Oh, तो sorry. Purchase रुको एक from मिनट। Rahul. 10th point 4th तो नंबर दिया था है सर। ना, Yes sir. वो तो हो गया। received from Rahul Receive from Rahul 90,000 90,000. Full settlement of settlement। transaction. Serial number 2. बेटा अगेन आप जाइए, अब आपने क्या करा है, रिसीव किया है तो रिसीट वाउचर पे जाइए। पहले एंट्री लिख लो, इसकी क्या बनेगी। सेकेंड एंट्री का अमाउंट कितना था, 350 इंटू 270 था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes sir. 350 into 300. प्लस 12% कितना हो गया, 350 इंटू 270 प्लस 12%। Sir 12,600. नहीं यार, Sir total 11 total बन रहा है 1,05,840। Yes, sir. कितना आया, 1,05,840। Yes, sir. बेटा ये झा साहब ये जरा अपना माइक बंद रखो अभी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर रिसीविंग, तो एंट्री क्या बनेगी, एसबीआई अकाउंट डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट 90,000, एसबीआई अकाउंट डेबिट 90,000। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमने अलाउ करा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने, सो 12,600। नहीं यार तू गलत बोल रहा है, तो डिस्काउंट 12% तो है। नहीं डिस्काउंट नहीं बेटा, ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना था, 1,05,840। 15,800 Sir, 11,340. हाँ, तो इसमें से 90,000 माइनस करो, कितना आएगा, 15,840। 15,840। तो एंट्री क्या बनेगी, एसबीआई डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 15,840 टू राहुल, राहुल पार्टी का नाम है। तो अगेन Yes, ये sir. कंबाइंड एंट्री है, कंपोजिट एंट्री है, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। एसबीआई टू राहुल रहेगा 90,000 और डिस्काउंट अलाउड टू राहुल रहेगा 15,840। तो साक्षी बेटा यहाँ रिसीव कर लो राहुल से 90,000, सॉरी एसबीआई के अंदर, यस यस राहुल 90,000, एंटर जल्दी से ऑन अकाउंट, यस यस मूव यस, जर्नल Alt C, discount allowed, indirect expenses, this under is very very important, बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, not applicable, move, it is 15,840, enter to Rahul, okay, accept on account, done. So we have entered 4 entries. Next is purchase from Sumit, he is a registered supplier, purchase from Sumit, he is a registered supplier, मिक्सर हमने परचेज किए हैं। यहाँ इसने मेंशन नहीं किया कि हम ये सुमित कहाँ पे रहता है, तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि वो दिल्ली के अंदर रहता है। गो टू द सेल वाउचर, सॉरी परचेज वाउचर, वाउचर नंबर डाल दो इसके अंदर 5, इससे परचेज किया हम लोगों ने सुमित से, सुमित है पहले में हमारे पास, यस सर, ओके मूव, परचेज अकाउंट, यस, क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, मिक्सर 20@100, 800, एंटर, एंटर। अब बताओ क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट, वी आर बाइंग, Input. यस इनपुट, Input.
इनपुट जीएसटी अपने आप ऑटो मोड में देखो आ गया, एंटर, आउटपुट इनपुट जीएसटी, यस, एंटर, ई वे को नो कर देना, यस, एक्सेप्ट। Okay, the next entry is sale to Pooja from Punjab. Go to the sale voucher. Entry number होगी ये 6 डाल दो, reference number, enter. Party is Pooja. देखो पूजा है हमारे पास पहले से, yes we have Pooja. सेल में हमने इसको सेल किया बल्ब, yes 120, the rate is 400, enter, एंटर। सेल किया तो ये पंजाब में रहती है तो आउटपुट आईजीएसटी, एंटर। देखो अमाउंट ही लिया ना, ऑल डे करो बेटा, अमाउंट दिखा रहा होगा टैक्स का, कितना दिखा रहा है वो एंटर कर दो जो दिखा रहा है अमाउंट, 5 समथिंग क्या है, एंटर, नो, एंटर, yes. The next is paid to Sumit on account. On account पे किया तो इट मींस यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ओके तो जल्दी से पेमेंट करो बेटा सुमित को, यस एसबीआई 25,000, yes. The next entry is Rohit, whose account was written off last year as bad debts, paid rupees 10,000 in cash. So bad debt recover की एंट्री करनी है, एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसलिए हम कैश में लेंगे उसको, ठीक है ना। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, तो सेलेक्ट कैश, रिसीट बेटर, रिसीट वाउचर में जाइए, कैश, टाइप सी, यस, ऑल्ट सी, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनडायरेक्ट इनकम, GST is not applicable. Yes, the amount is given 10,000, yes. Accept. Now we are on entry number 9 now. Purchase a building, GST exempted. हालांकि यहाँ भी GST आ सकता है, अगर यहाँ GST आएगा तो उसको भी वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए, यहाँ से मैंने जीएसटी रिमूव कर दिया। इवन दो जब भी आप कोई बिल्डिंग कोई भी एसेट परचेज करेंगे, इवन जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं वहां भी जीएसटी लगते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए मिनिमाइज कर दिया है ताकि कम से कम जीएसटी आपको झेलना पड़े। परचेज द बिल्डिंग, जीएसटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम भूषण लिमिटेड 7 लाख, सेटल द अकाउंट बाय इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर 3 लाख to Bhushan and balance shall be treated as secured loan. Okay. एंट्री का बनेगी बेटा, बिल्डिंग डेबिट 7 लाख रुपीज, टू डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज, टू भूषण लिमिटेड, द बैलेंस अमाउंट इज 4 लाख। कह रहा है हमने 7 लाख की बिल्डिंग ली है, 3 लाख के डिबेंचर देती है, बाकी बैलेंस हमारे ऊपर एज ए सिक्योर्ड लोन रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विल गो टू दी जर्नल, यस, बिल्डिंग मेरे ख्याल से है हमारे पास, चेक करो, लैंड बिल्डिंग, यस देयर इज लैंड बिल्डिंग 7 लाख, टू डिबेंचर भी मेरे ख्याल से है हमारे पास, लेकिन नाउ दिस डिबेंचर इज सिक्योर्ड वन। हमने जो डिबेंचर अकाउंट ओपन किया था दैट वाज अनसिक्योर्ड, तो ऑल्ट सी डिबेंचर, डुप्लीकेट नाउ आ सकता है, यहाँ पे एंटर करो। हाँ क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट दिखा रहा है, स्किप करो, एक डिबेंचर के साथ लग देना, डिबेंचर के लिखना ब्रैकेट में सिक्योर्ड, एंटर, अंडर सिक्योर्ड लोन, एससीसी टाइप कर, चलिए आगे, नॉट एप्लीकेबल,
नो नो, चलते रहो आगे। ओके, द अमाउंट इज 3 लाख। एंटर टू, एंटर ऑल सी भूषण लिमिटेड। भूषण लिमिटेड एक में कौन सा लोन है? सिक्योर्ड लोन। यस, अगेन सिक्योर्ड लोन। गुड गुड, एंटर, एक्सेप्ट कर लो बेटा। ना ही सेइंग कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 150 के अंदर। वी नीड टू चेक द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू इज 80,000 एंड इफ यू आर सेलिंग एट 150, तो हाउ मच प्रॉफिट इज देयर? 70,000। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? ये कौन से बैंक से करना है ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार। दिस एंट्री नीड टू बी पास थ्रू पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो पीएनबी डेबिट 1,50,000 जो एंट्री बननी है। पीएनबी डेबिट 1,50,000 टू इन्वेस्टमेंट 80,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000। सो पहले जाते हैं रिसीट वाउचर के ऊपर। रिसीट वाउचर पीएनबी उठा लो, यहाँ पे पी लिखो, पीएनबी एस इन्वेस्टमेंट 150। एंटर, एंटर। प्रॉफिट की एंट्री जाएगी जनरल से, जैसे यहां भी ले सकते थे, चलो कोई नहीं, जनरल से ले लेते हैं। सो द एंट्री इज एक मिनट को बेटा। ओके लिसन, ये एंट्री जो हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहली एंट्री कर दी है तो उसको आज दूसरी एंट्री से हम ठीक कर देंगे। मैंने अभी क्या एंट्री पास की है? पीएनबी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 150। 150 से पास की थी ना बेटा अभी? यस सर। हाँ, 150 से, यस। अब हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो प्रॉफिट बुक करने की एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पिक करो बेटा, 70,000। एंटर टू ऑल सी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इनकम। स्टूडेंट अभी भी एंटर करे जा रहे हैं। गुड गुड गुड, एक्सेप्ट, यस। द नेक्स्ट एंट्री इज यू आर पेइंग सर्टेन एक्सपेंसेस। अब पेमेंट की एंट्री में एक साथ कर दूंगा, पेमेंट वाउचर से सबकी एक साथ। तो बेटा पेमेंट वाउचर पे आ जाओ, सारे खर्चे मैं एक साथ पे कर दूंगा, ठीक है ना? और पे किससे करने हैं? पीएनबी से पे करने हैं, तो पीएनबी पिक कर लो। यहाँ पर ऊपर लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि सेल परचेज के अलावा सारी एंट्रियां पीएनबी से होनी है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो पहला एक्सपेंस पे करा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल्ट सी इलेक्ट्रिक बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट एक जंप हो गया आगे, 10,000 ले लो, 10,000। बेटा क्वेश्चन के अंदर अमाउंट एक जंप करके आ गया तो मैं 10,000 ले रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट इज ऑल्ट सी टेलीफोन बिल, एक मिनट को देखो, टेलीफोन बिल के साथ में लिखा हुआ है कि उसमें जीएसटी पे करना है आपको, ठीक है ना? तो जरा जाना ऊपर, लिखा है कुछ जीएसटी की ऑप्शन आ रही है। यस एप्लीकेबल, यस, यस करो, यस एप्लीकेबल। परचेज टैक्स भी पे कर रहे हो ना आप, इसलिए द रेट इज 18% है मेरे ख्याल से, 18%। एंटर, सर्विस है अभी। यहाँ पे अमाउंट डालिए उसका, ये 5,000। एंटर,
यहीं पे हम उसका जीएसटी पे कर देंगे। इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, सर एक मिनट को, सर्विस विद इन स्टेट होगी ना, हाँ, इनपुट सीजीएसटी। अब देखो यहाँ पे इसका अमाउंट अपने आप नहीं आ रहा है, तो आप 6% अपने आप से निकाल के डाल देंगे। 5000 का करना जाएगा, 6% कितना हो गया, 300 रुपये। 300, ये साक्षी 300, सॉरी, आई एम सॉरी, हियर इट इज 18%, हाँ हाँ 18%, 450 सर। ओके, एंटर, इनपुट एसजीएसटी 450। चलिए आगे, अगला अकाउंट है सैलरीज, ऑल सी, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल। यहां पे कह रहा है कि आपने जो सैलरी पे करी है ना, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी है, जरा चेक करो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। 25,000। 25, ओके, तो आपने करंट सैलरी 25 पे करी है, आउटस्टैंडिंग 25, बड़ा लिखो 25 लिखो यहाँ पर, एंटर। अब लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिखा होगा ऑलरेडी, और आप टाइप कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा, उसका अकाउंट है हमारे पास, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यस, दिस 25,000। देन ऑल सी, रेंट अकाउंट, indirect expenses, the amount is 90,000. All C, insurance premium, indirect expenses, okay, the amount is, इसका अमाउंट है 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज, बस एक्सेप्ट कर लो। यस, नाउ वी आर ऑन द लास्ट एंट्री, 12th एंट्री, यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज, टोटल आउटस्टैंडिंग इज 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 20,000। तो बेटा पहले तो हमने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी पहली वाली, तो नाउ वी हैव टू पास द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। फॉर दैट वी गो टू द जर्नल, salaries account debit to salaries outstanding, amount is 20,000 to salaries outstanding 20,000, yes, enter. The next is rent outstanding, again in journal, rent account debit to rent outstanding, rent तो हमारे पास है, मेरे ख्याल से rent outstanding भी है, ठीक है, जस्ट वेट, जरा ऊपर चेक करते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग, okay, there is a catch. Listen, on the liability side you have a rent outstanding, 37,000 rupees. अब नीचे बोल रहा है कि टोटल रेंट आउटस्टैंडिंग जो है आपका, टोटल रेंट आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंस इज 25,000। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग का अमाउंट जो है, जो ओपनिंग बैलेंस था 37,000 का, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो देयर इज अ इनडायरेक्ट हिंट कि यू पेड सम पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग रेंट, यू पेड सम पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग रेंट। 37,000 का ओपनिंग बैलेंस है मेरा आउटस्टैंडिंग का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 25,000।
इसका मतलब कि आपने कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट पे कर दिया है। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, दो तरीके से मैं इस एंट्री को पास कर सकता हूँ। पहले मैं पुराना पूरा रेंट आउटस्टैंडिंग पे कर दूं 35,000 37,000 सॉरी, और उसके बाद एक एंट्री पास कर दूं आउटस्टैंडिंग रेंट की अलग से, आउटस्टैंडिंग रेंट की अलग से एक एंट्री पास कर दूं, दैट इज 25,000। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट पे कर दूं पूरा का पूरा, और फिर जनरल में जाके नई आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पास कर दूं। एक तरीका तो वो है, या मैं सीधा डिफरेंस से एंट्री पास कर दूं। तो डिफरेंस छोड़ो, मैं आपको पूरा वाला कराता हूँ। पहले बेटा पुराना आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में जाओ, उसे खत्म करना होगा। अकाउंट होगा पीएनबी, एंटर, रेंट आउटस्टैंडिंग आएगा बेटा यहाँ पर, एक पड़ा होगा हमारे पास 37, देखो बैलेंस दिखाएगा 37,000। कोई हमने पे करा है रेंट आउटस्टैंडिंग क्या? कोई चेक करना दो, जस्ट वेट। नहीं किया है अच्छा सर पेमेंट। हाँ पेमेंट नहीं हुआ है सर पहले आउटस्टैंडिंग रेंट का। हाँ, मैं वही चेक करो, जस्ट वेट। बेटा यहाँ लिखो 37,000 लिखो बेटा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, एंटर करो ना। हाँ जीरो हो गया ना, ठीक है, चलो आगे, चलिए आगे, एक्सेप्ट करो। अब जनरल में जाओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, दोनों अकाउंट है हमारे पास 25,000। गुड, चलो, वेरी नाइस। सो साक्षी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एंटायर सोल्यूशन। बेटा एस्केप करो, एस्केप, रिपोर्ट्स पे आ जाओ। फर्स्ट गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटेल्ड वर्जन। सो वी हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ, कितना दिखा रहा है बेटा, 80 समथिंग, आई एम नॉट एबल टू सी। 36,100। yes and you can also find a net profit over here। तो जिन बच्चों ने भी नहीं किया, साथ साथ नहीं कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। इससे पहले टू में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ये सोल्यूशन आपका आना चाहिए। एस्केप, बैलेंस शीट, डिटेल वर्जन। दिस इज योर बैलेंस शीट। On the liability side, you can see that profit loss के अंदर एक current year का profit हमारा ऐड हो गया है, and there is a new heading on the liability side under duties and taxes। जाओ बेटा वहां पर, एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो जितना आपने जीएसटी इनपुट का पे करा है वो दिखा रहा है डेबिट साइड में 17,220, और जितना आपने जीएसटी रिसीव किया है सेल पे वो दिखा रहा है आपको 17,100। तो आपने जीएसटी पे करा है 17,220 का, और आपको जीएसटी रिसीव हुआ है 17,100 का। तो आपने पे ज्यादा किया है, तो आपके लिए क्या बन गया, ये असेट बन गया। इफ द इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी, तो हमारे लिए क्या है, वो असेट है। इसीलिए देखो लायबिलिटीज में उसका नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। नेगेटिव बैलेंस मींस असेट। करना बेटा इसके दिखाना है, नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा होगा वहां पर, यू कैन चेक। 120 का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब गवर्नमेंट से रिफंड लेना है हम लोग, दैट इज द मीनिंग। ओके, आप इसको पिक्चर ले लो बेटा सब लोग। एस्केप, डिस्प्ले, डे बुक, डिटेल्ड। ये डे बुक के अंदर आप सारी एंट्री अपनी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और कोई भी एंट्री अगर आपको गलत लगती है तो उसे वहीं पे ऑल्टर या डिलीट करके यू कैन रेक्टिफाई इट। ओके, एस्केप। उसका आइए आप ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के ऊपर, वहां जीएसटी दोबारा दिखाया था आपको, जीएसटी 2, जीएसटी 2।
तो यहाँ पे आपको जीएसटी क्वेश्चन दिखाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शंस आपने की है, क्या आपने जीएसटी पे किया है, एवरीथिंग विल शो यू. ओके, escape, come back to gateway. Yes, any doubt of anybody? किसी का कोई डाउट है? Good enough. साक्षी, अब्दुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट. अब मेरे ख्याल से मेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई डाउट होगा तो आप इन दोनों से पूछ सकते हैं. जो डाउट, ओके, यस प्रभात, बताओ. सर ये जीएसटी जैसे हम लोग एजुकेशन मोड में बना रहे हैं तो जीएसटी कंपनी क्रिएट के टाइम में नहीं आ रही है. तो आपको ना जीएसटी का नया वर्जन डाउनलोड करना है. जीएसटी की वेबसाइट पे जाना, वहां पे नया वर्जन डाउनलोड कर लेना. ठीक है, क्या लिखोगे? जीएसटी सॉरी टैली ईआरपी विद जीएसटी डाउनलोड. ओके, ओके, थैंक यू सर. वहां पे नया वाला वर्जन डाउनलोड कर देना, उसमें आ जाएगा ऑप्शन. एनी अदर क्वेरी? Okay, Sakshi, thank you very much. You all must thank Sakshi for helping us out for solving this question. Thanks a lot. Now, I will be going to close this meeting. In case you have any doubt, you can WhatsApp me or you can talk to Sakshi directly. There is no problem at all. Okay.